الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم گرامر کے کچھ ٹاپکس میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں. مرکبات ہم نے شروع کیے تھے جن کو کمپاؤنڈ ورڈز بھی کہتے ہیں اور فریگمنٹس بھی کہتے ہیں. یعنی اسم کے ساتھ مل جائیں، دو اسما مل جائیں تو وہ مرکب بنتا ہے. اور مرکب ناقص کی یہ قسمیں ہم پڑھ رہے ہیں. مرکب تام ہوتا ہے اور مرکب ناقص. مرکب تام کا مطلب ہے کہ وہ کمپلیٹ پورا جملہ بن رہا ہے. پورے جملے کا مطلب ہے کہ بات سمجھ آ رہی ہے، پوری ہو رہی ہے. اور مرکب ناقص کا مطلب ہے ناقص جیسے ناقص ہوتا ہے تو بات پوری نہیں ہوتی، انکمپلیٹ بات ہوتی ہے، انکمپلیٹ جملہ ہوتا ہے، اس کو ناقص کہتے ہیں. اور اس کی قسمیں تھی اور قسموں میں 6 ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اس میں سے ہم 3 ہم کر چکے ہیں، چوتھا آج ہم انشاءاللہ کریں گے. ہم نے کیا پہلے مرکب توصیفی کیونکہ وہ بہت ایزی تھا. پھر اس کے بعد ہم نے کیا مرکب اشاری جس میں اس میں اشارہ یوز ہوتا ہے. پھر ہم نے کیا مرکب عطفی اور آج ہم انشاءاللہ کریں گے مرکب جاری. مرکب جاری را پہ شد ہے، ٹھیک ہے، مرکب جاری. اچھا، مرکب جاری اب جیسے پیچھے اگر آپ دیکھیں جو ہم نے مرکب عطفی جو ہم نے کیا تھا، یہ آپ باکس میں سائٹ پہ لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے حروف عطفی دیے ہوئے ہیں. تو مرکب عطفی کا مطلب ہے کہ یہ حروف عطفی سے ریلیٹڈ ہے. مطلب جہاں پہ یہ عطفی حروف آ جائیں تو وہاں وہ مرکب عطفی کہلائے گا. یہ حروف آپ کو یاد بھی رکھنے چاہیے اور اس کے معنی بھی آنے چاہیے. یہ پچھلی کلاس میں ہم نے کور کیا تھا، ٹھیک ہے. ایک دفعہ اس کو ریوائز کر لے اور پھر جہاں پہ سمجھ نہ آئے وہاں آپ پوچھ سکتی ہے. حروف عطفی میں ہم نے کیا تھا کیونکہ واو ابھی آسان ہے اور سمجھ آ جائے گا ایزیلی آپ لوگوں کو، اس لیے سب سے پہلے ہم نے واو کیا تھا کہ واو عطفی. اور واو ضروری اس لیے بھی ہے کہ ابھی آج ہم مرکب جاری میں بھی واو پڑھیں گے تو ڈفرنس کا آپ لوگوں کو پتا تھا. اور لسٹ میں نے اس لیے دی تھی کیونکہ یہاں جو حتیٰ کا جو لفظ آ رہا ہے، واو بھی اور حتیٰ بھی، تو یہ بھی مرکب جاری میں بھی آ رہا ہے. تو کنفیوز نہ ہو آپ لوگ، تاکہ وہاں پہ ہم اس کو معنی ہم اس کی کلیئر کر دیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ نے دماغ میں رکھنا ہے. واو عطفی ہوگا جب وہ دو اسماء کے درمیان میں آئے گا اور اس کا مطلب ہوگا اور. السماوات والارض، آسمان اور زمین. ٹھیک ہے، یہ حرف عطف ہے جو کہ دو اسماء یا دو جملوں کو، جیسے واو جو ہے یہ دو اسماء کو ملا رہا ہے. جو باقی چیزیں ہیں جیسے آپ کو ثم ہے یا حتی ہے یا او ہے یا بل ہے یا لاکنہ ہے یا اما ہے یا ام ہے، یہ آپ کو ملیں گے جہاں پہ دو جملے ملتے ہیں. ایک جملہ ابھی کیونکہ ہم نے جملہ فعلیہ ابھی ہم نے نہیں کیا نا، ہم نے اسمیہ صرف بس جیسے سب سے چھوٹا جملہ ہوتا ہے وہ ہم نے کیا ہے. اس لیے ابھی یہ باقی حروف عطفی میں نے کور نہیں کیے، ڈیٹیل سے نہیں بتائے. یہ جب انشاءاللہ ہم جملہ فعلیہ کریں گے وہ آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح خود بخود اس وقت تک سمجھ آ جائے گا. ٹھیک، ابھی آپ نے یاد رکھنا ہے واو عطفی. واو عطفی جب آئے گا، حرف عطف جب آئے گا تو وہ اور کے معنی میں ہوگا. ٹھیک ہے. اور ابھی جب اسی واو کو ہم حروف جار میں پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے قسم کے، جیسے والفجر. عطف کا جو حرف ہے واو، یہ کبھی شروع میں نہیں آتا، یہ درمیان میں آتا ہے ملانے کے لیے. لیکن جو حرف جار واو ہے، واو جارہ جو ہے وہ قسم کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے والفجر والشمس والقمر ایسے. اور اسی طرح حتیٰ بھی ابھی آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا. یہ آپ نے بس کچھ چیزیں یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم چلتے ہیں. جیسے اس میں حروف پہلے ہم نے کیے تھے تو وہ حروف عطفی سے ہی ریلیٹڈ مرکب عطفی تھا.
اسی طرح مرکب جاری جو ہے وہ حروف جارہ سے ریلیٹڈ ہے، حروف جارہ سے ریلیٹڈ ہے۔ اچھا، اب حرف کو یہاں پہ سمجھ جائیں کہ حرف کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے اسم کور کیا ہے، ہم نے ابھی تک فیل نہیں کیا، ہم حرف حروف ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسم کے بعد ہم جب مرکبات کر رہے ہیں تو اس میں جہاں جہاں مرکبات حروف سے ریلیٹڈ ہے تو ہم حروف بھی کور کر رہے ہیں، اور تقریباً انہی مرکبات کے ساتھ ہمارے حروف کا ٹاپک بھی کور ہو جائے گا، جس کا مطلب ہے کہ 2/3 آپ کا گرامر کا سلیبس ختم ہو جائے گا۔ 2/3، 3 حصے ہیں آپ کے، اسم، حرف اور فعل، بس سمپل۔ ٹھیک ہے، تو اسم ہم نے بہت ڈیٹیل سے کور کر لیا، حروف ہم انشاءاللہ مرکبات کے ساتھ ساتھ کور کر لیں گے، آپ کا فعل رہ جائے گا۔ تو 2/3 آپ کا اگر اچھی طرح اگر آپ اس کو سمجھ جائیں، غور کریں اس پہ، تو آپ کو یوں سمجھے کہ 2/3 کا مطلب ہے کہ اتنے ہی الفاظ جو قرآن پاک میں آ رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو حرف وہ مطلب ایسا لفظ ہے جو کہ جس کے اکیلے کوئی سینس نہیں بنتی، جو الگ سے کوئی معنی نہیں دیتا، یہ اس کا صرف کام ہوتا ہے، یہ کام کرتا ہے، مطلب جیسے اس کا اسپیسیفک جاب ہوتا ہے۔ وہ جاب کیا ہے کہ یہ جو آگے اسم آ رہا ہو یا فعل آ رہا ہو اس پہ یہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جوڑنے کے کام آتا ہے، مطلب یا اسماء کو ملاتا ہے یا فعل کو ملاتا ہے یا اسم اور فعل کو ملاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا کام ایسے ہیں، یہ اس کا الگ سے، جیسے اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، باتا کاف لام واو، یہ الگ سے آپ کو کوئی معنی نہیں دے سکتا۔ مطلب جیسے واو اگر ہم نے جیسے عطف میں پڑھ لیا، اور کیا، یہ جب تک آگے پیچھے اسم سے یا پھر فعل سے یا اسم اور فعل سے نہ مل جائیں تو آپ کو اس کے معنی کلیئر نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ حروف کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ اسم کی ہم نے پراپرٹیز پڑھ لی ہے کہ 4 پراپرٹیز ہوتی ہے، مطلب اس کی اعرابی حالت ہوتی ہے، اس کے جنس کا تعین کرنا ہوتا ہے، اس کے عدد کا ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، اس کی وسعت کو دیکھنا ہوتا ہے۔ حروف کی اسے کوئی پراپرٹی نہیں، حرف کی کوئی پراپرٹی نہیں۔ ٹھیک ہے، حروف کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، صحیح ہے۔ اور حروف آپ نے یہ یاد رکھنے ہیں کہ ابھی جیسے آج والے حروف جو ہم پڑھ رہے ہیں اور اگلے لیسن میں انشاءاللہ جو ہم پڑھیں گے، یہ اپنے آنے والے اسما پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے حرف جار اینڈ اٹس وکٹم، کہ جار کی وجہ سے آگے اسم کیسے چینج ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے یہ یاد رکھنے ہیں کہ حروف جو ہے اپنے آنے والے اسما پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جیسے جو مرکب جاری ہے وہ کیسے بنتا ہے، حرف جر ہوگا اور اس حرف جر کی وجہ سے جو اس کے ساتھ اسم آئے گا وہ مجرور ہو جائے گا۔ بہت ایزی ہے، سمپل بھی ہے، انٹرسٹنگ بھی ہے۔ اب آپ کو تقریباً یوں سمجھے کہ فیل کو اگر نکال لیں تو آپ کو تقریباً یہ 75% ورڈز جو ہے آپ کو قرآن پاک میں سمجھ آ جائیں گے۔ یہ حرف جر ہوگا اور ساتھ میں اسم ہوگا، وہ اسم مجرور ہو جائے گا جر کی وجہ سے، تو یہ مرکب جاری بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حروف جارہ جو ٹوٹل ہے وہ 17 ہے، قرآن پاک میں صرف 11 استعمال ہوئے ہیں، ہم صرف 11 کو ہی پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، باقی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں جیسے ریپیٹ کروں گی، اگر آپ کو یہ یاد ہو جائے نا تو بہت اچھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، جس سیکوینس سے جیسے میں ابھی پڑھتی ہوں آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگ ساتھ ساتھ پڑھیں تاکہ آپ لوگوں کو یہ یاد ہو جائے۔ اور آپ دیکھیں گے تلاوت کرتے ہوئے کہ ہر آیت میں آپ کو یہ حروف کوئی میرے خیال میں کوئی 5-10 دفعہ آتے ہیں، اور ایک پیج پہ آپ یا ایک رکوع میں اگر آپ دیکھیں گے تو کتنی دفعہ آتے ہیں، تو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور بہت سارا انشاءاللہ قرآن پاک آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ابھی 11 حروف جارہ جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں اس کو ہم کور کریں گے۔ یہ ہے با تا کاف لام واو، من فی ان الا حتی علا، پڑھیں گے بھی ہم ایسے ہی، اور یاد کرنا ہے آپ لوگوں نے، مطلب یہ آپ لوگوں کے فنگر ٹپس پہ ہو۔ ٹھیک ہے، با تا کاف لام واو، با تا کاف لام واو، با تا کاف لام واو، من فی ان، من فی ان، من فی ان الا حتی علا، الا حتی علا، الا
حتى على. با تا کاف لام واو من في عن إلى حتى على. با تا کاف لام واو من في عن إلى حتى على. با تا کاف لام واو من في عن إلى حتى على. ٹھیک، یہ کیا ہے؟ یہ حروف ہے. کون سے حروف؟ حروف جارہ. حروف جارہ ہے اور یہ اپنے آنے والے اسما کو جر کی حالت میں لے جاتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں مجرور اسم. جو اسم جر کی حالت میں ہوتا ہے اس کو مجرور کہتے ہیں. تو ایسا حرف جر اور مجرور اسم مل کر مرکب جاری بناتے ہیں، اس کو ہم کہیں گے مرکب جاری. ٹھیک، کیونکہ اسم بائی ڈیفالٹ اگر آپ کہیں نا تو وہ مرفوع ہوتا ہے. بائی ڈیفالٹ اسم رف کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی اس کی سٹیٹس جو ہے، اعرابی حالت جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. اس کی اگر وہ آپ کو نصب کی حالت میں نظر آ رہا ہے یا وہ آپ کو جر کی حالت میں نظر آ رہا ہے، مطلب مجرور یا منصوب اگر نظر آ رہا ہے نا، تو اس کے کوئی ریزن ہوں گے. ٹھیک ہے، وہ یہ کہ حروف جر ہوں گے، حروف جارہ ہوں گے پہلے، جس کی وجہ سے وہ اسم مجرور ہوگا، یا حروف ناصبہ جو کہ ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ کور کریں گے، تو اس کی وجہ سے اسم جو ہے وہ منصوب ہو جاتا ہے. ٹھیک، تو اسی کو ہم اب انشاءاللہ اس کے ایک ایک معنی دیکھتے ہیں. یاد بس آپ لوگوں نے کرنے ہیں با تا کاف لام واو من فی عن الی حتی علی. ٹھیک، با تا کاف لام واو من فی عن الی حتی علی. اب دیکھتے ہیں کہ ان پر حرکات کون سی ہوتی ہے اور یہ کہاں کہاں کیسے یوز ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن پاک سے ہی بہت ساری مثالیں اٹھائی ہیں میں نے، اب انشاءاللہ بہت کلیئر ہو جائے گا آپ لوگوں کو. اسکرین کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ یہ دیکھنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ سمجھ آ رہا ہوگا نا؟ کیونکہ میری کوشش تھی جتنی زیادہ مثالیں ہو سکتی ہیں آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں. جی میم کلیئر ہے. چلے جی الحمدللہ. اوکے جی، با کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ با آپ کو جو با جارہ ہے، جیسے حرف جار جو ہے با، یہ آپ کو زیر کی حالت میں ہمیشہ ملے گا، بی ملے گا. بی آپ کیسے یاد رکھیں گے؟ بسم اللہ سے آپ یاد رکھیں. بسم اللہ، بسم اللہ کی سمجھ آ جائے گی آج. بسم اللہ سے آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو پہلے بی لگا ہوا ہے یہ ہے حرف جار اور زیر کی حالت میں یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب اس کا کیا ہے؟ کے ساتھ، ود کے معنی میں آتا ہے. ود، کے ساتھ، کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ. جیسے ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ، اللہ اسم کہتے ہیں نام کو، اللہ کے نام کے ساتھ. وہ کے ساتھ کہاں سے آیا؟ بی سے آیا. بی الگ کر لے، اسم الگ کر لے، اللہ الگ کر لے، تو اللہ کے اسم کے ساتھ. کے ساتھ کہاں سے آیا؟ بی کی وجہ سے آیا. ٹھیک، تو مطلب اس کا کیا ہے؟ کے ساتھ یعنی ود. اب مثالیں جیسے بسم اللہ ہے، بالقلم، قلم کے ساتھ. بنصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ. باذن اللہ، اللہ کی اجازت کے ساتھ. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. بسم ربک، آپ کے رب کے نام کے ساتھ. بسم ربک العظیم، آپ کے عظیم رب کے نام کے ساتھ. کلیئر ہے؟ ٹھیک، یہ ہوا با. جیسے با آپ نے یاد کیا، یہ ہمیشہ آئے گا زیر کے ساتھ، بی کے ساتھ. جیسے بالقلم، بسم اللہ، باذنی. ٹھیک، اچھا پھر ہے تا. تا جو ہے جیسے یہ واو، تا اور واو دونوں آپ یاد رکھیں کہ یہ قسم کے لیے آتے ہیں، اس پر ہمیشہ زبر ہوگا. جو حرف جارہ میں جو ہے تا اور واو. ٹھیک ہے، تو تا بس ایک آدھ جگہ پہ ہی آیا ہے اور یہ ہمیشہ قسم کے لیے کیسا آتا ہے؟ تاللہ، مطلب کسی اور قسم نہیں، جیسے اللہ کے ساتھ مخصوص ہے اور کہیں اور جگہ پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے تاللہ. تاللہ ہے، بس یہ ایک آدھ جگہ پہ ہی آپ کو نظر آئے گا اور یہ زبر کے ساتھ ہی ہوتا ہے. ٹھیک، اسی طرح واو جہرا جو ہے، واو جہرا یہ بھی زبر کے ساتھ ہی آتا ہے اور اس کا بھی قسم کے معنی میں ہی آتا ہے. ٹھیک، یہ بیچ میں نہیں آئے گا. اب عطف کے ساتھ، اب عطف سے آپ نے اس کو الگ کر دینا ہے. یہ قسم کے معنی میں آتا ہے اور یہ شروع میں ہی ہوگا. ٹھیک، اب آپ یہ دیکھیں گے کہ جو حروف جارہ ہے یہ اپنے آنے والے اسما کو زیر کی حالت میں لے جاتے ہیں. یہ سب پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ زیر لگے ہوئے، جیسے بالقلم، بنصر اللہ، باذن اللہ،
बिस्मिल्लाह, जेर का मतलब है कि ये जर की हालत में है। ठीक, और ये किस वजह से है? ये इन हरूफ जारा की वजह से। तो वाव जो है जैसे वल्लाही, अल्लाह की कसम, वशम्सी, सूरज की कसम, वल कमरी, वन नहारी, जेर जेर आप देख रहे हैं सारे अस्मा मजरूर है। ठीक, किसकी वजह से है? ये वावे जहरा की वजह से। वल्लैली वस्समाई वल अर्दी वत्तीनी वज़ैतूनी वत्तारिकी वल अस्री वल कुरानिल मजीदी वल कुरानिल हकीमी वरब्बी, मेरे रब की कसम, वरब्बी। ठीक, क्लियर? ये वाव अत्फ और वाव जार आपने कंफ्यूज नहीं होना। वाव जार हमेशा दरमियान में आता है, दो अस्मा को मिलाने के लिए वो बीच में होगा, उसके मायने होंगे और। जो शुरू में वाव आएगा वो वो वाव अत्फी होगा जो और मानी में आएगा। जो वाव जार है ये शुरू में आएगा और इसके मायने होंगे कसम के। वशम्सी, सूरज की कसम, वल कमरी, चांद की कसम, वन नहारी, दिन की कसम, वल लैली, रात की कसम। ठीक, ऐसे आएगा। आगे देखते हैं हम काफ। काफ जो है जैसे मिसाल, जैसे मिसाल के लिए आता है कि लाइक, यानी उसकी तरह, जैसा हम कहते हैं। जैसे कल कमरी, चांद की तरह या चांद जैसा, की तरह या की मानिंद, के जैसा, ऐसे इस मानी में आएगा। ठीक है, और आप देखेंगे कि अगला जो इसके साथ इसम होगा वो मजरूर होगा, मतलब जेर की हालत में होगा, जर की हालत में होगा। कल हिमारी, गधे की तरह, कल जिबाली, पहाड़ की तरह, कल हिजारती, पत्थर की तरह, कल अनआमी, जानवरों की तरह। की तरह कहाँ से आया है? ये जो काफ शुरू में लगा हुआ है। कल मुजरिमीना, मुजरिमों की तरह, कशजरतिन तय्यिबा, सूरह नूर में आया है, कशजरतिन तय्यिबतिन, पाकीज़ा दरख्त की तरह। कास्फिम माकूल, सूरह फील में हम पढ़ते हैं, खाए हुए भुस की तरह। कास्फिम, अस्फ जो है वो भुस है, और का मानिंद। कल फराशिल मबसूस, ये सारे हम आखिरी सूरतों में पढ़ते हैं। कल एहनिल मनफूश, कल उर्जूनिल कदीम, कल फराशिल मबसूस, बिखरे हुए पतंगों की तरह। कल एहनिल मनफूश, ये धुनके हुए रूई की तरह। कल उर्जूनिल कदीम, पुराने खजूर की शाख की तरह। ये का जितना शुरू में आया है, जैसे कमिस्ली आपको नजर आएगा, कमिस्ली, कदाबी, जो का शुरू में होता है उसका अलग से कोई मायने नहीं है, लेकिन जब वो मिलता है उसके साथ, अस्मा के साथ, तो उसका मतलब निकलता है। और मायने हम कैसे करेंगे कि मतलब उसका क्या है? की तरह, या मानिंद, या जैसा। और इंग्लिश में सीधा सीधा जैसे लाइक, लाइक दिस, लाइक दैट। ठीक है जी, ये आया। लेकिन आप देखेंगे कि का पे जबर है, वाव पे भी जबर है, ता पे भी जबर है, लेकिन आगे जो इसम आएगा वो मजरूर होगा, वो जेर की हालत में होगा। ये नहीं है कि ये सारे जो हरूफ जारा जो है ये सब जेर की हालत में होंगे, नहीं, ऐसे नहीं होगा। किल हिमार नहीं होगा, किल जिबाल नहीं होगा। ठीक है, ये जो इनके जो हरकत है ना, ये भी आप लोगों ने याद रखने हैं कि ता भी हमेशा जबर के साथ होगा, एक आध जगह पे आया है, वाव भी जबर के साथ, काफ भी जबर के साथ, और बा जो है ये जेर के साथ होगा हमेशा। ठीक है जी, अच्छा जी। फिर आगे ये थोड़ा सा जो लिस्ट है ना, ये जरा सीक्वेंस में नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि वो जो लाम है ना, लाम थोड़ा सा मैंने और तरह से एक्सप्लेन करना है, इसलिए वो जरा एंड पे है। फी आ जाए, फी। और देखिए कितनी दफा आया है कुरान पाक में। फी का मतलब है मैं, इन। ठीक है, जैसे फिल बैती, घर में। फिल मस्जिदी, आप जेर देख रहे हैं, मजरूर इसम है, मस्जिद में। फिल किताबी, फिल गुरफती, कमरे में। फिल जन्नती, जन्नत में। फी जहन्नमा, अब जहन्नम जो है ये मुनसरिफ है, तो जहन्नमी नहीं होगा। ठीक है, फिल लैली, फिल नहारी, गैर मुनसरिफ जो होते हैं उनके फिर वो चेंज नहीं होते। फिल लैली, जो गैर मुनसरिफ अस्मा है उसके ये कि नस्ब और जर की हालत एक जैसी होती है। ठीक है, नस्ब और जर की हालत एक जैसी होती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। जहां जो जो पढ़ रहे हैं ना, जिस प्रॉपर्टी में जिस जगह पे आप फंस जाएं, आपने पीछे से वो रिवाइज करना है, उस लिस्ट में दोबारा जाना है और उसको आपने रिवाइज करना है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। वरना जहां फंस जाए और उसको छोड़ते जाएंगे, फिर आगे उसको कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है,
في الليل في النهار في الأرض في السماوات في القرآن في ليلة القدر في سبيل الله في دين الله في أمان الله في رحمته في أموالكم في الصحف الأولى في لوح محفوظ في صدور الناس في بطون أمهاتكم. یہ سارے کیا ہے؟ آگے جو اسما لگے ہوئے ہیں سب مجرور ہے، ٹھیک، فی کی وجہ سے. کلیئر ہے؟ مطلب ہے ان یعنی میں، جو ان والا میں یا متکلم والا نہیں، ٹھیک ہے، میں جو ہے اس کو متکلم کے ساتھ خود اپنی طرف وہ والا نہیں. ان آگے جائیں، من اور ان آپ کو تقریباً لگیں گے کہ یہ ایک جیسے ہیں، تھوڑا سا فرق ہے. یہ تھوڑا سا انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ ذرا اور معنی کلیئر ہو جائیں گے نا چیزیں کا آپ کو، تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ من ڈفرنٹ ہے ان سے. ٹھیک ہے، یہاں ساتھ ہے لیکن من جو ہے وہ سے، فرام. ٹھیک ہے، جیسے من مکہ تھا تو مکہ سے. ان جو ہے، ان کا مطلب ہے اباؤٹ. کہیں پہ آپ کو جیسے ایسا لگے گا کہ اس کا مطلب ہی سے ہے، جیسے اس سے روایت ہے، لیکن یہ جیسے انگریزی میں آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی کہ اس کا مطلب ہے کہ اباؤٹ یعنی اس کے متعلق، اس سے ریلیٹڈ، وہ والا سے، اس سے ریلیٹڈ. ٹھیک. من المدینتی، مدینہ میں سے یعنی شہر میں سے. من البیتی، گھر سے، گھر میں سے. من المسجد، من السماء، من المسجد، من المسجد الحرام، من عند اللہ، من شر النفاثات، من شر حاسد. ٹھیک. اور ان کیسے؟ ان سے زیادہ، جیسے آپ کو کیسے جو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم حدیث ہم کوٹ کرتے ہیں تو وہ روایت پڑھنا بڑا ضروری ہے کہ کس سے یہ راوی کون ہے، کون بیان کر رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں نا جیسے ان انسی، ان ابی ہریرہ، تو یہ وہ ان ہے جیسے ان سے متعلق ہے، ان سے روایت ہے. تو یہ من سے، من نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، من جو ہے وہ فرام کے معنی میں آتا ہے، لیکن ان جو ہے یہ اباؤٹ کے معنی میں آتا ہے. ان ابی ہریرہ ان الفحشاء ان ذکر اللہ. ٹھیک، کلیئر ہے. اچھا، من آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ من نون پہ تو جزم ہے، لیکن جب آگے ملاتے ہیں تو اس کو دیکھے زبر دے کے ملایا جا رہا ہے. مین المدینتی، مین البیتی، لفظ من ہی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ الگ کریں گے نا اور الگ معنی جب آپ نکالتے ہیں تو من اور المدینتی، من البیتی، من المسجد، ملا کے پڑھنے سے کیسے؟ زبر لگائیں گے. مین المدینتی، مین البیتی، مین المسجد. کلیئر. اچھا جی، پھر آگے ہی الہ. الہ کا مطلب ہے ٹو یا ٹورڈز، اس تک، جیسے تک یا کی طرف، ٹو یا ٹورڈز، جیسے کسی پہاڑ کی طرف. الى جبل، الى البیت، گھر کی طرف. الى السوق، بازار کی طرف. الى الابل، اونٹ کی طرف. الى السماء، آسمان کی طرف. الى الجبال، پہاڑوں کی طرف. الى الارض، زمین کی طرف. الى المسجد الاقصى، مسجد اقصی کی طرف. الى ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف. ٹھیک ہے. گھر تک، یہ الى البیت جیسے گھر تک بھی آتا ہے اور گھر کی طرف بھی آتا ہے، کی طرف یا تک. الى. پھر ہے علی. علی کا مطلب ہے اوپر، جیسے ہم آتے ہیں نا پر، یا انگریزی میں اگر آپ دیکھیں گے تو آن اور ایٹ دونوں آئے گا. پر جیسے اوپر. ٹھیک ہے. اور ابھی تھوڑا سا علی اور لا کو میں اینڈ پہ تھوڑا سا اور بھی ایکسپلین کروں گی. ٹھیک ہے، ابھی سمپل آپ معنی سمجھے کہ علی کا مطلب ہے کہ پر یعنی آن، اور ایٹ بھی آتا ہے. ٹھیک، جیسے علی الکرسی، یہ کرسی پر. علی العرش، عرش پر. علی العالمین، تمام جہانوں پر. اب اس پر کی سمجھ جا رہی ہے نا کہ تمام جہانوں پر، ایسے تو نہیں ہے تمام جہانوں پر جیسے فوقیت. علی قلوبہم، ان کے دلوں پر. علی سمعہم، ان کی سماعت پر. علی ابصارہم، ان کی بصارت پر. ٹھیک ہے، اب سمجھ آ گئی علی. اور علی جو ہے یہ اگینسٹ کے لیے بھی آتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی تم کماتے ہو نا تو علی نفسی ہی، وہ تمہارے نفسوں کے خلاف ہے، یا لی نفسی ہی، یہ لی ابھی میں ایکسپلین کروں گی.
तो अला जो है ये ऑन और एट तो सिंपल मीनिंग है, लेकिन अला जहाँ पे उस सेंस में आए तो ये खिलाफ का मतलब है। ठीक है, अला नफ्सी ही, नफ्स के खिलाफ, अला नफ्सी ही, अपने नफ्स के खिलाफ। ठीक। हत्ता का मतलब है टिल, तक, यानी उस तक। हत्ता हीन, एक मुकर्ररा वक्त तक। जैसे उसमें इसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो इसम है वो मजरूर की हालत में होगा। जो अत्फ वाला हत्ता है उसमें ये शर्त जरूरी नहीं है। ठीक है, ये आपको अब दोनों जो है वो आप अलग अलग कर सकेंगे। जैसे वाव जारा और वाव अतफी, अब अलग अलग आपको मायने क्लियर है ना। इसी तरह हत्ता भी, क्योंकि वो हरूफी अतफी में भी है हत्ता, और यहाँ हरूफी जारा में भी है, तो अब आपको अलग करना बड़ा इजी होगा। हरूफ जारा वाला हत्ता जो है उसके बाद इसम का मजरूर होना जरूरी है। हत्ता हीनिन आपको नजर आता है, एक मुकर्रर वक्त तक। हत्ता मतलइल फजरी आपको नजर आता है। ठीक है, यानी सुबह के तुलू होने तक, टिल। फिर है लाम। लाम जारा, और जो मैं कहती हूँ ना लाम ताकीद, उसमें आपको आ, फर्क करना चाहिए। ठीक है, लाम ताकीद जो है वो हमेशा जबर के साथ आता है। जैसे लक़द, कद के साथ हमेशा आया होता है। ठीक है, लक़द लयस्जुनन्ना लयुसल्लिबन्नकुम, कल जो हम जैसे पढ़ रहे थे कि हम जरूर मैं तुम्हें सूली चढ़ाऊंगा। लयक़तुअन्ना, तुम्हें काट डालूंगा। लयक़तुअन्ना, तो वो ताकीद के लिए आता है, उसको कहते हैं लाम ताकीद। ठीक। और ये लाम जो है ये जेर के साथ आएगा और ये लाम जारा कहलाएगा। के लिए, के लिए आएगा, फॉर, के लिए के। जैसे ले जैदिन, जैद के लिए। ले वलदिन, वलद के लिए। ले बशरिन, ले रजुलिन, ले अम्रिल्लाहि, अल्लाह के हुक्म के लिए। लिल वलदी, वलद के साथ। लिर्रजुली, लिर्जिक्री, लिलमुत्तकीना, लिलकाफिरीना। आपने बहुत देखा होगा लिल्लाही, अल्लाह ताला के लिए। लिल्लाही, तो वो लाम अलग है, लाम जारा है ली, और अल्लाह अलग है। ठीक है, लिल्लाही। जब लाम जो है, जैसे ये नीचे वाली लाइन जो आपको नजर आ रही, ये अल के साथ जब मिल जाए ना, तो उसका जो हमजा वसली है वो गिर जाता है। जैसे ये था ली अल वलदी, तो जब मिला के पढ़ेंगे तो लिल वलदी आ जाएगा। ठीक है, ये था ली अर्रजुली, तो लिर रजुली। ये था ली अजिक्री, तो लिजिक्री आ गया। ये था ली अल मुत्तकीन था, तो लिल मुत्तकीन आ गया। ठीक है, जैसे आपको लिल्लाह नजर आता है ना, लिल्लाह, तो लिल्लाह क्या है, ली अलग है और अल्लाह अलग है। लेकिन जब मिला के हम पढ़ते हैं और लिखते हैं, तो जो बीच में हमजा वस्ली होता है ना वो गिर जाता है, और पूरा ये मिल जाता है लिल्लाह, ऐसे पढ़ते हैं। जैसे ये था लिल काफिरीना, क्या था, ली अल काफिरीना था, तो ये लिल काफिरीन हो गया। ठीक है जी, क्लियर है, मायने क्लियर हो गए। बा ता काफ लाम वाव। जी मैम, क्लियर हो मिन गया। फी, हाँ, मिन फी अन इला हत्ता अला, ये हरूफ जारा है, और हरूफ जारा के बाद ये अपने आने वाले इसम को जर की हालत में ले जाते हैं, और वो इसम मजरूर हो जाता है। जर का मतलब है जेर की हालत में चला जाता है, और जेर की हालत में इसम को हम कहते हैं मजरूर। तो ये दोनों मिलकर मुरक्कबे जारी बनाते हैं। ये जितनी भी अभी हमने मिसालें पढ़ी, ये सब मुरक्कबे जारी की मिसालें। ठीक है जी, अच्छा। अब और आपने बहुत दफा, बहुत जगहों पे आप देखते हैं कि यही जो हरूफ है ये जमाहिर के साथ भी लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी अगर आपको लिस्ट याद हो, तो हमने मंसूब जमाहिर भी किए थे, हमने मजरूर जमाहिर भी किए थे, हमने मरफू जमाहिर भी किए थे। ठीक है कि जो मिल के आते हैं, जो जमाहिर वो कैसे होते हैं। और अभी हम वो लिस्ट देखेंगे, और हम ये देखेंगे कि ये मजरूर जमाहिर क्यों होते हैं। ये इस वजह से क्योंकि ये अभी इन हरूफ के साथ मिलेंगे तो ये इस शक्ल में आएंगे। ठीक है, तो मजरूर जमायर जो है मुतसिल मिल के ये कैसे आते हैं। और मरफू किस हालत में थे, हुआ, हुमा, हुम, वो याद रखे ना। और फिर हा, हुमा, अम, ये मरफू जमायर, ये याद है।
हुआ, हुमा, हुम, ये नॉर्मली आपको ज़मायर इस हालत में मिलते हैं, लेकिन जब आपको दूसरी शक्ल में मजरूर हालत में मिलते हैं ना, उसके रीजंस हो गए। अभी आज आप लोगों को ये भी समझ आ जाएगी कि ये उस हालत में हमें क्यों मिलते हैं। ये हरूफ जारा की वजह से आपको उस तरह मिलते हैं। या हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। ठीक। अब ये देखेंगे कि यही जमायर जब मुत्तसिल हालत में आते हैं और जर की हालत में चले जाते हैं तो वो कैसे होते हैं। वो आपको ये मिलेंगे ऐसे। आपको नजर आता है हुआ की जगह आपको हु या ही नजर आता है। और ये सिंपल पेश के साथ भी, जेर के साथ भी, और खड़ा पेश भी होता है और खड़ी जेर भी होती है। ठीक। वो भी हम देखेंगे कि वो कब कब होता है। और हुमा मिलता है, हुम मिलता है। हिया की जगह हा मिलता है, हुमा मिलता है, हुन्ना मिलता है। अंता की जगह का आपको मिलता है, और कुमा मिलता है अंतुमा की जगह, और कुम अंतुम की जगह। अंती की जगह की आता है, अंतुमा की जगह कुमा आता है, अंतुन्ना की जगह कुन्ना आता है, और अना की जगह याय मुतकल्लम। अब याय मुतकल्लम आपने याद रखना है, ठीक है। याय मुतकल्लम ये मजरूर इसम के साथ लगा हुआ होता है। मजरूर मतलब आगे जर का कोई हर्फ होगा और उसके साथ जब लगाएंगे या इसम हो तो ये मजरूर हालत में ये या आता है। या अना के लिए या आता है और उसको हम कहते हैं या मुतकल्लिम। और नहनु की जगह ना, और जमा के लिए भी ना ही आता है, मतलब मुसन्ना और जमा दोनों ये ना आता है। ठीक है। अब यही लिस्ट आप देखेंगे कि इसमें से अब कौन कौन से हैं जो कि इन जमायर के साथ मिल के आए हुए हैं। ठीक है। अच्छा। अब इसमें आपने अभी भी हम करते भी हैं, लेकिन जैसे ता की जरूरत नहीं है, ता नहीं आता। ठीक है। वाव भी इस तरह नहीं आता क्योंकि इनका मतलब ही कसम है। ठीक है। और का भी नहीं आता। ठीक है। और फी आया हुआ है बहुत। मिन है, अन है, इला है, अला है, हत्ता भी नहीं है, और लाम है। ठीक है। लाम जारा ये आपने याद रखने हैं। हत्ता भी नहीं है, जमायर के साथ नहीं है। ठीक। और क्या नहीं है, का नहीं है, वाव नहीं है, और ता नहीं। बाकी जितने हैं वो मैंने टेबल्स बनाए हुए आप लोगों के लिए ताकि हम अब इनको देख ले मिला के। पहले तो ये जो वाहिद मुजक्कर गायब की जमीर है ना, इसको समझे। ये जो है इसमें बस थोड़ा सा जरा ये ट्रिकी तो नहीं है, बस थोड़ा गौर करने वाली बात है। ठीक है। वाहिद मुजक्कर गायब की जमीर जो हु और ही मैंने लिखा हुआ है, इसको समझे। ठीक है। हु और ही कैसे आता है। ये है वाहिद मुजक्कर गायब की जमीर। ठीक है। हुआ की जगह हुआ होता है, फिर हुआ की जगह मुत्तसिल जब आता है मिला हुआ, तो हु लिखने और पढ़ने के मुख्तलिफ तरीके हैं। अब इसका उसूल क्या है यह अब आपको समझना है। ठीक है। पहला क्या है कि पेश या जबर हो। कहाँ से। ये इस जमीर से पहले, इस जमीर से पहले पेश या जबर हो तो जमीर पर उल्टा पेश आएगा। ये उल्टा पेश जैसे हमें नजर आता है। ठीक है। किताबुहु, उसकी किताब। ठीक। और जेर हो यानी उस जमीर से पहले जेर हो तो जमीर पर खड़ी जेर आती। जेर के लिए जेर की जैसे जेर के साथ ही बनती है। ठीक है। जबर और पेश की जो है वो पेश के साथ बनती है, जबर और पेश की जेर के साथ नहीं बनती। तो जब जेर हो उससे पहले तो किताबी ही आएगा, किताबी ही आएगा। ठीक। अगर या साकिन हो तो जमीर पर जेर आए, जेर देंगे। ठीक है। किताबई ही, किताबई ही उससे पहले अगर या साकिना हो। अच्छा, फिर उसके अलावा कोई और हर्फ साकिन हो, साकिन या अलिफ हो, तो जमीर पर सीधा पेश आता है। हम थोड़ा ये कंफ्यूज हो रहे थे ना कि अच्छा भाई ये उल्टा पेश और जो खड़ी जेर है ये कहीं पे जैसे उल्टा पेश हमें नजर आता है, कहीं पे खड़ी जेर हमें नजर आती है, कहीं हमें सिर्फ सिंपल जेर और पेश नजर आती है। तो ये क्या चक्कर है, ये अब आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है। ये हमने वैसे तजवीद की क्लास में जब मैं सिला पढ़ा रही थी ना, इसको सिला भी कहते हैं क्योंकि अब देखिए ये जोड़ने के काम आ रहा है ना, जुड़ा हुआ है। सिला सुगरा और सिला कुबरा हमने वहां पे किया हुआ था। अब ये क्या है कि जब वैसे जमीर है ये। ठीक है। इसको कहते हैं हाय जमीर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, हाय जमीर। अब इसके कुछ रूल्स है ना, इसी वजह से इसका अलग कायदा बना है। इसको कहते हैं हाय जमीर। जमीर की ये हा है, और ये कौन सी हा है, ये वाहिद मुजक्कर गायब की है। वाहिद
मुज़क्कर गायब की। तो इसके इसी वजह से कायदे बने हैं। ठीक, अब जब आपका ये जो जहाँ पे खड़ा पेश आए और उल्टा पेश आ जाए और जहाँ पे खड़ी जेर आ जाए, तो ये अब आपका सिला बन गया, इसको हम कहते हैं सिला सोगरा। और जहां इसी के ऊपर आपको मद नजर आए वो सिला कुबरा बन जाता है। ठीक है, और मद के रीजन क्या होते हैं कि बाद में आपको इसके बाद आपको हमजा नजर आएगा। इस हाय जमीर के बाद आपको हमजा नजर आएगा, जिसकी वजह से इस पर मद लग जाता है। ठीक, उसको हम कहेंगे सिला कुबरा। चलो, ये एक तजवीद का भी टॉपिक रिवाइज हो गया। ठीक है, और जब ये सिंपल जेर या पेश की हालत में मिले तो उसको कहते हैं हाय जमीर। क्या कहते हैं? हाय जमीर, हाय जमीर कहते हैं। ठीक है, और वो कब होता है? जब या साकिन उससे पहले हो, या कोई और हर्फ साकिन हो, या अलिफ हो, तो फिर सिंपल पेश या जेर डलते हैं। चले जी, अब हम इन हरूफ के साथ ये हरूफ जारा के साथ मिला के अब इसको देखते हैं। ठीक है, अब हम एक उठाते हैं बा। बा हमेशा किस हालत में होगा? जेर की हालत में, बी आएगा। ठीक है, तो बिही, उसके साथ, बिहिमा। अब ये जैसे जेर के साथ लगेंगे तो जेर लगाएंगे, हुमा था तो उसको भी जेर देके बिहिमा बन जाएगा, और हुम था तो बिहुम तो नहीं होता ना, तो उसको भी जेर देके बिहिम बना देंगे। ठीक है, बिही उसके साथ, बिहिमा उन दोनों के साथ, बिहिम उन सब के साथ, बिहा उस औरत के साथ, बिहिमा उन दोनों औरतों के साथ, बिहिन्ना उन सब औरतों के साथ, बिका आपके साथ, बिकुमा तुम दोनों के साथ, बिकुम तुम सब के साथ, बिकी औरत के लिए आएगा, उस यानी तुम्हारे तुम औरत के साथ, बिकुमा तुम दो औरतों के साथ, बिकुन्ना तुम सब के साथ औरतों के साथ, बी मेरे साथ। बी के साथ अब या मुतकल्लिम मिल गया तो बिया हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, या मुतकल्लिम जब मिल जाता है तो क्या पढ़ेंगे? बी मेरे साथ, बी ना हमारे साथ। ठीक है, क्लियर है? अभी देखिए ये कितनी दफा ये सारे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। अब आप जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है। अच्छा, फिर देखिए फी है, फी को इन सारे जमायर के साथ मिलाएं तो फी था, और हा के साथ मिलके अभी हमने क्या पढ़ा? जो मुजक्कर गायब की है ना, इसको इसको देखें। हमने क्या पढ़ा कि अगर या साकिना हो तो हम उसको जेर दे के पढ़ेंगे, तो फी ही आपको मिलेगा, फी हा कभी नहीं मिलेगा, फी हु कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, फी ही, फी हिमा जेर की वजह से फी हिम, फी हा उसमें, जैसे फी हिमा, फी ही उसमें, फी हा उस औरत में, फी हिमा उन दोनों औरतों में, फी हिन्ना उन सब में, फी का आप में, फी कुमा तुम दोनों में, फी कुम तुम सब में, फी के तुम औरत में, फी कुमा तुम दोनों औरतों में, फी कुन्ना तुम सब औरतों में। और या मुतकल्लिम के साथ मिलके फिया, फिया कभी आया नहीं है लेकिन फिया होता है। ठीक है, और फीना, फीना आया हुआ है। हम में, फीना हम में। अच्छा जी, फिर हम देखते हैं मिन को मिलाते हैं तो मिन के साथ कैसे जाएगा? हु की जमीर आ रही है। ठीक है, मिन हु मिल रहा है आराम से, तो हु, मिन हु, मिन हुमा, मिन हुम, मिन हा, मिन हुमा, मिन हुन्ना। मिन का मतलब से, फ्रॉम, उससे, मिन हुमा उन दोनों से, मिन हुम उन सब से, मिन हा उस औरत से, मिन हुमा उन दोनों औरतों से, मिन हुन्ना उन सब औरतों से, मिन का आप से, मिन कुमा तुम दोनों से, मिन कुम तुम सब से, मिन की तुम औरत से, मिन कुमा तुम दोनों औरतों से, मिन कुन्ना तुम सब औरतों से, मिन्नी कितनी दफा आया है? मिन्नी मुझसे, मिन्नी, मिन था और साथ में ये या मुतकल्लम आ गया, तो मिलाने के लिए कैसे? नी आ गया, मिन्नी, और मिन्ना आ गया, मिन और दूसरा ना, तो मिन्ना, मिन्नी मुझसे, मिन्ना हम सबसे। फिर है अन को मिलाएं इसी तरह, मिन की तरह, अनहु, अनहुमा, अनहुम, अनहा, अनहुमा। हम पढ़ते हैं ना कि जैसे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और जब औरतों का हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अनहा, अनहा हम पढ़ते हैं।
मर्दों के साथ हम पढ़ते हैं रदियल्लाहु ताला अन्हु, उससे, अल्लाह ताला राजी हुआ उससे, अन्हु उससे। और जैसे आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा हम पढ़ते हैं, अगर गलत पढ़ रहे हैं तो आप करेक्शन कर ले। अनहा का मतलब है हा की जमीर औरत की तरफ, उनसे, उस औरत से, ठीक है। अनहु हम पढ़ते हैं और अनहा पढ़ते हैं। अनहुमा अनहुन्ना, इसी तरह अन का अनकुमा अनकुम, अनकी अनकुमा अनकुन्ना, अन्नी अन्ना। कितनी दफा आया है दुआओं में, कितनी दफा आया है अन्नी और अन्ना। अच्छा जी, इसी तरह इला और अला भी ऐसे ही है, ठीक है। अब जैसे जहां जहां हम इलई ही पढ़ते हैं तो मैं जब अलग मायने आपको बताती हूँ तो मैं कहती हूँ ये इला है, और इला जब मिल के आता है तो ये आई की तरह आता है, इलई ही जब मिलाते हैं, ठीक है। या ही साथ है ना, लाम है और या है, तो या जब आगे मिलते हैं तो कैसे इलई ही पढ़ते हैं उसको, इलैहिमा, उसकी इलैहि उसकी तरफ, इलैहिमा उन दोनों की तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ, इलैहिमा उन दो औरतों की तरफ, इलैहिन्ना उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैकुमा आप दोनों की तरफ, इलैकुम तुम सब की तरफ, इलैकी की औरत के लिए, तुम औरत की तरफ, इलैकुमा तुम दोनों की तरफ, इलैकुन्ना, इलैया मेरी तरफ, इलैना हमारी तरफ। इलैया कितनी दफा आया है, इलैना कितनी दफा आया है। तो ये क्या होता है, हरूफ है, हरूफ जारा है, और साथ में जमीर लगी हुई है, मुत्तसिल जमीर है। और कौन सी जमीर, मजरूर जमीर है, ठीक है, मजरूर की हालत में। और जमीर मजरूर क्यों है, क्योंकि हर्फ जो हर्फ जार की वजह से, जो हर्फ जर लगा हुआ है ना, उसकी वजह से वो जमीर जो है वो भी मजरूर है। अला भी जो है वो इलई की तरह ही है, ठीक है। अलैहि जैसे इला था और अला था, तो मिलाते हुए अलैहि, अलैहिमा, अलैहिम, अलैहा, अलैहिमा, अलैहिन्ना, अलैका, अलैकुमा। सलाम नहीं कहते, अस्सलामु अलैकुम, अलैकुमा, अलैकुम तुम सब पे सलाम हो। और अगर आप जैसे सही आपको पता हो और एक बंदा हो तो अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैका एक बंदे के लिए तुम पर सलामती हो। लेकिन हम क्योंकि हमने कभी गौर नहीं किया मायने पे, तो हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अलैकुम ये वाला अलैकुम तुम सब पर, अलैकुम तुम सब पर सलामती हो, अलैकुमा तुम दोनों पर सलामती हो। अब जब मायने क्लियर हो जाए ना तो उसके मुताबिक आपको सामने दो बंदे नजर आ रहे हैं, अस्सलामु अलैकुमा, और आपको एक बंदा नजर आ रहा है अस्सलामु अलैका, औरत नजर आ रही है अस्सलामु अलैकी, ठीक है। बहुत सारी औरतें नजर आ रही है अस्सलामु अलैकुन्ना, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अच्छा जी, अलैकी, अलैकुमा, अलैकुन्ना तुम सब औरतों की तरफ, तुम पर, अलैया मुझ पर, अलैना हमारी हम पर, ठीक है जी। ये हो गया। अब आया है लाम। लाम लाम जारा, जैसे हमने पढ़ा कि ये ली की हालत में है, जैसे लिल्ला ही आता है, ठीक है। लेकिन जब ये जमीर के साथ मिलता है मजरूर जमायर के साथ तो ये जबर की हालत में आता है, ठीक। लहू आएगा, लहा सब जबर लगेगा, लहू उसके लिए, लहुमा उन दोनों के लिए, लहुम उन सब के लिए, लहा उस औरत के लिए, लहुमा उन दोनों औरतों के लिए, लहुन्ना उन सब औरतों के लिए, लका तुम्हारे लिए, लकुमा तुम दोनों के लिए, लकुम तुम सब के लिए, लकी तुम औरत के लिए, लकुमा तुम दोनों औरतों के लिए, लकुन्ना तुम सब औरतों के लिए, ली मेरे लिए। अब यहाँ पे ली आ गया, ठीक है। ये अब आपने जब आप इंशाल्लाह बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे आप लई नहीं पढ़ेंगे, लई ली आता है, ठीक है। अल्लाहुम्मा इग़फिर ली, अल्लाहु अल्लाहुम्मा इग़फिर ली, इग़फिर बख्श दे, ली मुझे या मेरे लिए, बख्शिश फरमाया मुझे बख्श दे। अल्लाहुम्मा इग़फिर ली पढ़ते हैं ना हम, लना हमारे लिए। ये हुआ ये सारे चार्ट्स जो हमने हरूफ को जमायर के साथ भी मिला के हमने देख लिया, क्योंकि ये इस शक्ल में आपको बहुत जगहों पे आपको मिलेंगे, ठीक है।
اور आपको ये भी समझ आ गई कि ये जो एक ज़मीर है हु, ये कभी हु ही या खड़ा पेश, उल्टा पेश या खड़ी जेर के साथ इसके रीजन क्या होते हैं। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। अब ये हमने पढ़ लिया हरूफ जारा और मुरक्कब जारी। हरूफ जारा से ही मुरक्कब जारी बनते हैं, और हरूफ जारा वो हरूफ है जो अपने आने वाले, अपने साथ जो इसम होता है उसको भी जर की हालत में ले जाते हैं, और उसको कहते हैं फिर मजरूर इसम, यानी जेर की हालत में ले जाते हैं। अब ये खुद चाहे जेर ले या ना ले, आपने देखा ना हमने कि कहीं पे तो जेर नहीं है, जैसे ता पे जबर है, का पे जबर है, वाव पे जबर है, लेकिन आने वाले इसम जो साथ इसम लगा हुआ है उसको ये जरूर इम्प्रेस करता है, उस पर दबाव डाल के उसको जर की हालत में ले जाता है, वो जेर की हालत में ही आपको मिलेगा। और ऐसे हरूफ और अस्मा जब मिल जाए उसको कहते हैं मुरक्कब जारी, क्योंकि ये हरूफ जारा से बने हैं। और हरूफ जारा टोटल 17 है, लेकिन कुरान पाक में 11 ही बस इस्तेमाल हुए हैं, और 11 पे ही हमने फोकस करना है और हमने याद करना है। बा ता काफ लाम वाव, मिन फी अन आपको ऐसे ही मिलेंगे, मिन और फी और अन, इला हत्ता अला ये आपको ऐसे ही मिलेंगे। मिलाएंगे तो इलई जैसे आता है, अलई आता है। और बाता काफ लाम वाव में जो है वो लाम आपको जबर जेर के साथ मिलता है, लेकिन जब जमीर के साथ मिलता है तो वो जबर के साथ हो जाता है। ठीक है, वैसे ली लिल्लाहि के साथ याद रखा करे। वाव और ता आपको जबर की हालत में ही मिलेंगे, काफ आपको जबर की हालत में ही मिलेंगे, बा आपको जेर के साथ ही मिलेगी। बी, बी कैसे याद रखना है, बिस्मिल्लाह से याद रखना है, बिस्मिल्लाह, बिइज़्निल्लाही, बिस्मिल्लाही, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है जी, जिससे आप याद रख सके ना, वो कलमात आपके दिमाग में बार बार घूमने चाहिए, उसी से बंदा आगे फिर समझ जाता है। इसी तरह जैसे ता जो है वो तल्लाही आप याद रखा करें, का जो है वो आपको जिस जो आपको इजी लगता है, जो आप जुबान पे चढ़ जाए, जैसे कमिसले जो है या कल हिजारती, कल हिजारा हम कितने दफा पढ़ते हैं, पत्थर की तरह दिल सख्त हो जाते हैं, तो कल हिजारती याद रखा करें। लाम जो है वो लिल्लाही के साथ आप याद रखा करें। वाव जो है वो आपको बहुत सारी सूरतें याद होंगी, वशमसी वल कमरी वल फजरी। और मिन जो है वो मिनल्लाही याद रखा करें। फिस समावाति वल अर्द फी याद रखा करें। और अन जिक्रिल्लाही, जैसे कोई एक आप कलमा ऐसा पकड़ ले जिससे आपको ये हरूफ याद हो जाए और आपको मतलब समझ आ जाए। ठीक है, फिर उसी पे उसी को फिर आप बाकी पर अप्लाई करेंगे। ये हमारा आज का लेसन मुरक्कबे जारी हमने बड़े तफसील से कर लिए। हरूफ जारा जितने आए हुए हैं, और उसी के साथ जितने जो अस्मा मजरूर इसम जो होता है, और उससे फिर कैसे मुरक्कब बनता है वो भी हमने कर लिए, बड़े तफसील से हमने देख लिए। अब आप जब जब तिलावत करें ये सारे जो हरूफ है उनको निकालें, और साथ में गौर करें कि इनकी वजह से कि जो आगे इसम आया हुआ है क्या ये मजरूर है, जर की हालत में है, उसके नीचे जेर लगी हुई है या नहीं है। ये अब आपका काम है निकालना और प्रैक्टिस करना। और इसी तरह फिर जहां जहां ये जमायर के साथ लगे हुए हैं तो वो देखें कि किस हालत में आए हुए हैं। ये आपको बहुत सारे आपको कलमात मिल जाएंगे, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपको बहुत अच्छी तरह समझ भी आ जाएगा। यहीं पे हम आज का लेसन खत्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।